last 3 lectures, distance formula, section formula for internal division, only the external division formula given, not any problem was solved. No problem we solved on external. Later on, we are going to solve the problems on external division. But how to apply distance formula to find the distance between 2 points? Section formula to find the ratio, or if the ratio is given, to find the coordinates of the point which divide the segment. Also, midpoint formula and centroid formula. Now, some more applications after completing some parts of straight line. Now, what is a straight line? A straight line means a line which is a straight. Every line is a straight line. We have the coordinate axis, x and y axis. These two axes are called coordinate axes. Do you know why these are called coordinate axes? Yes. Why these are called coordinate axes? Hello. Yes, sir. Why these are called coordinate axes? We call it the coordinate axis x and y coordinate axis. क्यों? चलो सोच लो, बाद में कभी भी बताओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी. समझो मेरे पास एक लाइन है. सपोज आई हैव दिस लाइन. Now this line, any line, consider any line. Now let me give the name of this line is L. Now, if we have the angle made by the positive direction of x-axis, ये positive direction, इसके साथ जो लाइन का एंगल है, एंगल विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis, या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनचा जो अँगल आहे तो लाइन बरोबरचा, त्याला आपण थीटा असं म्हणू. and this theta is called the inclination of the line. Inclination. Again, suppose I have this type of line. Now, I have one. Inclination means. Hello. Inclination means. Inclination. Inclination is angle made with positive direction of x-axis of any line. My question is, for this line L2, say this is L, this is say L1. For this line L1, I have 4 angles with x-axis. This is also angle 3 with x-axis. Angle 1 is also with x-axis. Angle 2 is also with x-axis. Angle 4. Now, which of these 4 angles, या 4 मध्ये, in चारों में से, which of these 4 angles is the inclination? Inclination 1, 2, 3, 4 कौन सा? सर दूसरा वाला. Huh? सेकंड. ये चारों में से कौन सा एंगल इंक्लिनेशन है? सेकंड एंगल. सेकंड एंगल इज द इंक्लिनेशन, क्योंकि लाइन एक्स को जहां इंटरसेक्ट करती है वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाना है, ये उसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये एंगल है थीटा इन दिस फेस. लेट मी डिनोट इट एज अ थीटा 1, कि इधर थीटा है तो थीटा 1. समझ में आया? थीटा 1 इंक्लिनेशन. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ x-axis? What is the inclination of x-axis? x-axis का x के साथ क्या एंगल है? x खुद के साथ कौन सा एंगल बनाता है? ये हमारा x-axis है, ये y-axis है, और दूसरा हमने x-axis के ऊपर ड्रॉ किया. क्या एंगल है दोनों? 360. No, the angle between Zero. x-axis and x-axis is equal to 0. Theta equals to 0 degree. Is it right? Second, what is the inclination of y-axis? What is the inclination of y-axis? बोलिए, क्या है y-axis का inclination? What is inclination of y-axis? थीटा बोलो, कितना है? Also be 0.
Inclination मतलब what? 90 degree. I Angle don't with know. positive direction of x-axis is called inclination. 90 degree. Angle with, yes, बोलिए, 90 degree. positive x-axis. Yes, 90 degree. एंगल सभी का 90 डिग्री है. Yes, sir. 90 डिग्री, नो डाउट. अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इंक्लिनेशन में. मेरे पास x एंड y एक्सिस है. y. अब हमने इधर एक लाइन ड्रॉ किया, उसका इंक्लिनेशन है थीटा. अब हम ये दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. तो आप मुझे सर, दूसरी लाइन बताइए, कहाँ है? दोनों लाइन पैरेलल है. हेलो, आर यू ऑब्जर्विंग दिस टू लाइन? Yes, No, sir. sir. सर, नहीं. सेकंड लाइन दिखने रही है. ओए, yes, sir. नहीं देखिए, पहला नहीं दिख दिख रहा रहा है. लाइन. ये हाँ, पहली लाइन नहीं दिख रही. ये दिस इज फर्स्ट लाइन जिसका इंक्लिनेशन हमने दिखाया है थीटा. ये थीटा है और ये दूसरी लाइन उसको पैरेलल है, तो ये एंगल होता है इंक्लिनेशन. तो व्हाट अबाउट दिस इंक्लिनेशन ऑफ सेकंड लाइन? Also with theta. Yes, when the two lines are parallel, they will make corresponding angles are same. You know parallel line concept. Ninth standard Yes, sir. geometry. Corresponding angles. Here, let me draw the two parallel lines. First floor, ground floor. ये next floor, ये next floor. Do you remember? Yes, sir. Same Yes, thing sir. is applying. Theta and theta is same. Parallel lines have same inclination. Any doubt to anybody? No, sir. No, sir. No, sir. Parallel lines have same inclination. Yes, sir. So parallel lines have same inclination. Parallel lines have same inclination. मतलब equal inclination. ओके, तो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2 नंबर, ये 3 नंबर में है. व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बोलिए, एक्स पैरेलल लाइन का इंक्लिनेशन कितना है? और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, let me write inclination of line parallel to y axis. बोलिए कितना है? Parallel to x-axis is 90 degree. X axis तो 0 और Y axis तो 90 degree. पैरेलल को 90 और x के पैरेलल का 0 degree. अब any doubt about the inclination of line? No, sir. Think or it geometrically. Okay. पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल है उसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन. कभी भी आपको उसके ऊपर सोचना है. बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है. वी डिडंट टू एनी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन. कभी भी सिंपल होती है, हम उसको कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं. पहले इंफॉर्मेशन कभी भी सिंपल होती है. यूज द सिंपल इंफॉर्मेशन. Parallel lines have same inclination, x axis, y axis, same inclination, theta 0, 90 degree parallel line. अब ये है हमारा. अब परपेंडिकुलर लाइन में इंक्लिनेशन में क्या रिलेशन है? So let us see or take the screenshot. परपेंडिकुलर लाइन के इंक्लिनेशन में रिलेशन हम देखते हैं. Sir, this concept how to use in problems. Yes, वही तो हम आगे जा रहे हैं ना, धीरे धीरे. प्रॉब्लम में Okay. उसका कैसे यूज किया जाए. लाइन पैरेलल है तो इंक्लिनेशन सेम लिखने का. अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इंक्लिनेशन में क्या रिलेशन है? इंक्लिनेशन से हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टुवर्ड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. Okay. एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट. सबको समझ में आया इंक्लिनेशन? Yes, sir.
अभी हम इसको मिटा देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के इंक्लिनेशन का रिलेशन देखते हैं। Keep in mind, angle with positive x-axis is called the inclination. नाही दे बताओ क्या? द्यायचे एक बघ त्या 3 पुढ्या आहे एक सारख्या 1 2 3 इथे दाखवलं यांचे ना हे 2 इंचे आणि त्याच्यामधून पण फोडून थोडं कमी करून द्यायचंय ते जास्ती कारण यश चौधरी, हॅलो अरे घरातला आवाज येतो, म्यूट करून बोल. सॉरी सर काही नाही, सगळ्या घरी सेम असतं. सॉरी नहीं, when the lines are perpendicular, चलो इनमें दो परपेंडिकुलर लाइन के इंक्लिनेशन में क्या रिलेशन है? अभी जब कभी भी लाइन पैरेलल है तो आपको बताना चाहिए कि इक्वेशन का फॉर्मूला में इंक्लिनेशन सेम होता है, कुछ भी हो जाने दो. अभी हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस. अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. देखिए, दिस इज द फर्स्ट लाइन, यह लाइन है. अब हम इसका इंक्लिनेशन लेते हैं थीटा. देख लो, अगर ये थीटा है, अब हम क्या करते हैं, इसी को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. यह परपेंडिकुलर, तो आपको ये जो दूसरा लाइन है उसका इंक्लिनेशन मैं एंगल लिखता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. कौन से नंबर का एंगल इंक्लिनेशन? नंबर 3. नंबर 3, बिल्कुल सही. नंबर 3, नंबर 2 नहीं, नंबर 3. नंबर 2 नहीं, नंबर 3 इंक्लिनेशन है. समझे? आप मुझे बताइए, ये जो एंगल है, ये लाइन को हम L1 कहते हैं, इसे हम L2 कहते हैं. व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ L1? इंक्लिनेशन ऑफ L1 इज थीटा. 90 minus theta. हाँ, मुझे आप बताइए, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ L2? 90 minus theta. बताइए. नहीं, फिर से बताइए. ये देखिए, 90 do you know minus. the exterior angle theorem of a triangle? Yes sir. ये देखो, ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल कभी भी ये दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होता है. डू यू नो? Yes. सेम थिंग अप्लाइंग. ये इंक्लिनेशन ये दो एंगल के एडिशन के बराबर है. 90 प्लस थीटा. थीटा. एक का एंगल अगर थीटा है तो दूसरे का इंक्लिनेशन 90 प्लस थीटा. यू गॉट माय पॉइंट? Yes sir. ओके, यस सर. चलो अब हम जाएंगे स्लोप ऑफ लाइन, एक नए कंसेप्ट की ओर. स्लोप, कोई प्रॉब्लम अबाउट द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन? No sir. नो सर. यस नो सर. अभी हम जाएंगे स्लोप ऑफ लाइन. बहुत ही सही सिंपल तरह से जाइए, सिंपल, डायरेक्ट ब्रेन में जाएगा, इधर उधर नहीं, नोटबुक में नहीं. तो क्या है स्लोप ऑफ लाइन? हमारे पास इस तरह की लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाली. कोई भी लाइन लीजिए, किसी भी जगह लीजिए, तो दिस इज अ लाइन. ये जो इंक्लिनेशन है ना थीटा, इसी का स्लोप होता क्या है पहले बता देते. अब ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, स्लोप है क्या इस रास्ते? नहीं. है ना. नहीं, जीरो स्लोप है. नहीं मतलब जीरो स्लोप. 0 डिग्री. रास्ता थोड़ा सा ऐसा हो गया है. अब आपका स्लोप क्या हो रहा है?
देखो स्लोप अब और ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, पहाड़ी पे जा रहे हैं, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप देखो, है ना? तो आपका स्लोप इंक्लाइन हो रहा है, इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन। हमने आपको पूछा था एक्स एक्सिस कैसा है, आप बोले थे हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके साथ अपनी लाइन कितनी इंक्लाइन है उसके ऊपर स्लोप डिपेंड है। समझे? Yes. यस सर। सीधा कंसेप्ट, ये ऐसा इंक्लाइन है तो स्लोप 190 डिग्री, 190 degree. 90 अरे डिग्री, बहुत ऐसा इंक्लिनेशन और इंक्लिनेशन 180 और डिग्री। उसके पहले हम आपको इंक्लिनेशन के बारे में और पूछते हैं, फिर जाएंगे स्लोप। हमने जब इंक्लिनेशन बोला समझो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इंक्लिनेशन, उसी जगह ये इंक्लिनेशन, देखो ये इंक्लिनेशन, ऐसा इंक्लिनेशन जो वाई एक्सिस पर उसका सेम है 90 डिग्री। अब ये इंक्लिनेशन बहुत बढ़ गया, अब यह इंक्लिनेशन और भी बढ़ गया, अब ये इंक्लिनेशन और भी बढ़ गया। शुरुआत की थी हमने थीटा इक्वल टू 0, स्टार्ट है हमारा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है? ये लाइन ऐसा, यो ऐसा इंक्लिनेशन, फिर हम दिखाते हैं आपको, ये है और ये ऐसा लाइन है, तो ये इंक्लिनेशन है। तो लाइन का इंक्लिनेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 180 के नजदीक। 180 हुआ तो 0 हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। 179. 180 के नजदीक, 180 लेस देन 180। तो इसीलिए थीटा के बारे में जब आप सोचते हो 0 हो सकता है थीटा, बट 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल एंड ग्रेटर थीटा, बट स्ट्रिक्टली लेस देन 180। समझे आप लोग? No, sir. Yes. अब हम जाएंगे स्लोप ऑफ लाइन के। स्लोप आपको समझ में आया कि स्लोप डिपेंड ऑन इंक्लिनेशन, क्योंकि इंक्लाइन पोजीशन ही बताती है स्लोप। अगर इंक्लिनेशन नहीं तो स्लोप 0। जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ गया स्लोप बढ़ गया। अब देखो, और बढ़ने के बाद फिर निगेटिव होता है, और निगेटिव निगेटिव फिर 0 के बाद होता है। तो चलो स्लोप को डिफाइन किया है, स्लोप इज इक्वल टू m इज tan थीटा। डू यू नो tan sin cos cos sec cosec? यस सर। यस सर Yes, sir. वहां से tan थीटा, अगर किसी को मालूम नहीं तो हम बताएंगे जरूर। tan जरूर। थीटा की जो वैल्यू स्लोप नंबर में काउंट किए जाते हैं, मतलब आप बोले हम ऐसे जा रहे थे, आपको हम उसको नंबर्स में काउंट करते, नंबर्स में काउंट करते, नंबर्स में काउंट। यहाँ बहुत हाई स्लोप होगा, कितना होगा? बहुत 1090 90 degree में. है ना? 1090 डिफाइन है कि आप लोग 10वीं पास हो गए ना, आप Not ऐसे defined. पास हो गए, Not defined. 10वीं ऐसे पास हो गए यार, बहुत लकी हो। बैड लक में लक बोलते हैं उसको, है ना? कुछ लोगों को तो कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं की, बोले करेंगे एग्जाम के दिन, एग्जाम ही नहीं हुई, सब पास, कोई खुशी नहीं पास होने। चलो सिचुएशन है आपको कर। तो हम बोल रहे हैं तो 1090 डिफाइन है क्या? 1090 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, मालूम नहीं। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो है नॉट डिफाइन। तो हम आपको पूछते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? किती? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अरे दादा थीटा 0 आहे म्हणून स्लोप काय झाला? m इक्वल टू tan थीटा, tan 0 कितना वैल्यू है tan 0? 0
और एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल पे स्लोप नहीं रहता है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब दो लाइन का इंक्लिनेशन सेम है तो उनके स्लोप 0 ही हो गए सर. नहीं, दो लाइन के इंक्लिनेशन अगर सेम है, ये छोड़ दो, तो उनके They स्लोप, are they are perpendicular to each. सेम Yes, sir. ये छोड़ दो, दो लाइन है हमारे पास, ऐसे कैसे भी सेम में Parallel होगी दोनों सर. लाइन same होंगे. parallel है, Parallel. Yes, हाँ. sir. तो Parallel. उनका इंक्लिनेशन अगर सेम है, पैरेलल में हाँ. इंक्लिनेशन सेम होता है, Yes, उनका sir. स्लोप कैसे रहेगा? सेम होगा. Equal, Same equal. स्लोप भी Same. सेम होगा, Yes. क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम है तो tan थीटा सेम होगा। Yes, sir. इज इट राइट? हम्म Yes, अभी yes. हम लिखते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, फिर स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। व्हाट इज स्लोप ऑफ वाई एक्सिस? m equals to tan theta is tan 90. What is tan 90? Infinity. Not defined. Is it right? Not defined. अब हम आपको बताते हैं parallel line. Parallel lines have same inclination. So slopes are equal. Slopes are also Equal. equal. मतलब पहले लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरे लाइन का भी स्लोप M1 ही रहेगा. m1 ही रहेगा। m1 एंड m2 आर इक्वल। बिल्कुल सही, बहुत सही बताया। किसने बताया? अभी मैंने बोला पहले लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरे लाइन का भी स्लोप m1। किसने बताया अभी? मैं सर. Sir. प्रतीक. तो दो लाइन के स्लोप जब इक्वल है तो लाइन पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइन के इंक्लिनेशन एंड स्लोप इक्वल होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? 0. पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0. 0 0 0 m equals to tan 0 0 and slope of line parallel to y axis 90 बताइए। 90. नॉट Nine. डिफाइंड। Not defined. अब हम आपको परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे। परपेंडिकुलर में कैसे रहता है स्लोप? परपेंडिकुलर में बहुत सिंपल चीज होती है। पहले लाइन का स्लोप है m1, स्लोप ऑफ l1, और दूसरे लाइन का स्लोप ऑफ l2। अब आप ये मत पूछो कैसे आता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मालूम चाहिए। अब आप थोड़ा सा फैमिलियर नहीं, हम आपको फिर से बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री। जब लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं तो ये दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्या होता है स्लोप का प्रोडक्ट? -1. समझे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this is the way of finding the slope of the line. ये definition है slope की। Tan theta is a definition of slope of line. और methods भी है। This is the definition. Slope of line is tan theta. When two lines are perpendicular, product of the slope सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। है। सर आप आवाज हाँ नहीं आ बोला, सर आपकी आवाज? साउंड क्लियर नहीं आ रही है. आ रही रही है? है. क्लियर नहीं आ रही है. आवाज थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। सर अब आ रही है, बताओ. हाँ आ रही है, अब बताओ. आ रही है। एक मिनट, एक मिनट। ब्लर दिख रहा है सर.
दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर, दिख तो रहा है बट थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक। कैमरा बंद करके चालू कीजिए, बैंडविड्थ लो है। हेलो, नहीं सर, अभी भी ब्लर आ रहा है। ब्लर है सर। यस, ब्लर है। ब्लर है। आप देखो। नहीं सर, सर आप स्क्रीन शेयर करो ना। अब देखो। ओके सर, दिख रहा है। अब आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही है ना सर। आ रही है। आवाज आ रही। स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है आपको?